going to start the session. Before that, I will go for recording. Okay. Okay. So today I will start the second day for the online session of image processing. And as I told in first introductory class, that is image is nothing but the pictorial representation of signal. And from this statement, very first you have to know about the signal. So as our discussion about signal, we know that signal is nothing but the information which can be transferred from one point to another point. Okay, so signal, whenever the term signal is there, that means your signal information has to be transferred from one point to another point. Without transformation or without getting the signal information from one end to another end, there is no meaning of being a signal. So since as our previous knowledge in your electronics paper, like basic electronics, yeah, basic electrical and digital electronics, whatever the paper was that, so from that knowledge we also know that signal can be classified into two ways. Okay, and the signals mainly classified into two ways depending on their properties. One is analog signal and other one is digital signal. Now since image is one of the classific image is one of the class from the signal, that is pictorial representation of the signal, then image also has to be defined or has to be categorized into two categories, like one is analog image. So since image is a part of signal, so it also be classified into two categories, that is analog image and digital image. Okay, so now we have to know about the analog image and digital image. So as I told in previous class, can you define the can you give me an example of analog image and digital image? As I told in previous classes, also even in previous class I have also given you the example. So can you tell me the example of an analog image and a digital image? Anyone? Anyone from you? Can you tell me about? Can you give me an example of an analog image and digital image? Anyone from your end? Or else I will. Television, हाँ बोलो. the television images are analog images. Television and digital. तो वीडियो इन वीडियो ग्राफिक्स में जो images होता है. Okay. Okay. Fine. Any other example from any other one? So since you have given the example of television,
Okay, now I am just going to enlarge this example, or I am going to explain this example. So raise your hand if you have ever seen a CRT television set, like a बड़ा वाला सेट, हाँ, जिसके पीछे पिक्चर ट्यूब रहता था. तो raise your hand if you have seen that CRT television. Only 3, 4, 5. Okay, that means more than 50% of you have seen the CRT television. So in that television, okay, have you seen any options like recording, or could you ever record the program which was broadcasted on that television set? No, sir. No, but nowadays smart television sets are available. Okay, now raise your hand if you have smart television in your home, or ever you have seen any smart television. Raise your hand. Okay. ओके, थैंक यू. सो यहाँ पे देखोगे इन दैट स्मार्ट टेलीविजन सेट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं वी हैव इन केस ऑफ सीआरटी टेलीविजन व्हाट एवर वी वर वाचिंग दैट इज टोटली received by antenna or cable network, huh? And no set top box was there. So in that case I can say this is a continuous signal, that means analog one. But nowadays whenever we are using smart television set, you will see that the channel will be broadcasted through a set top box. I think whoever have the smart television in their house, they have also a set top box attached with that television set. So that set top box is nothing but the conversion of analog to digital signal. And the television set, in case smart television set, whatever we are viewing, that is totally in the form of digital signal. And in that case you will see in most of the television set there is an option recording. Okay, so analog, in the case of analog signal, there is no option such like recording of program. But in case of smart television set, or in case of smart devices where the analog signal is processed, there is an option like recording. So whenever recording is there, that means it needs some storage. Even in mobile phone, okay, before 5 to 7 years before, we were using mobile phone which is 2G network, which supported 2G network, and in that case we are not able to take the snapshot, even recording was not there. ठीक है, विदाउट कैमरा. कैमरा का बात हम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल से सिंपली मोबाइल जहां पे मेरा डिस्प्ले होता था, फोन आता था नोकिया 1100, ठीक है. तो वहां पे क्या होता था, रिकॉर्डिंग का मेरा तुम्हारा स्क्रीनशॉट का कोई ऑप्शन नहीं रहता था. बट नाउअडेज व्हेनेवर वी आर यूजिंग स्मार्टफोन, ऑलमोस्ट नहीं, ऑल सेट हैज द have the facility of taking snapshot. So whenever we are going to take the screenshot is stored in some places. So in case of analog image and digital image, analog image is not requiring any storage, whereas digital image requires storage. That means analog image is totally related to the, not related to the memory, whereas digital image, that means you have to store it in the memory. So in previous class I had already given you an example, that is photograph. जब घर में सभी का एल्बम है, ठीक है, तो देखोगे एल्बम का जो फोटो है दैट इज द फिजिकल एंटिटी, हाँ,
उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट वी कैन स्टोर इट, कि हम किसी डिवाइस में इसको स्टोर नहीं कर सकते, रेदर देन वी फ्रेम्ड इट, ठीक है। सो एनालॉग इमेज को हम लोग कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए होगा, उस एनालॉग इमेज को हम स्कैन करेंगे, फिर कंप्यूटर में सेव करेंगे, या क्या कर सकते हैं, उसका फोटो उठा के उसको एक ड्राइव पे या डिवाइस पे या मोबाइल फोन में जो भी मेरा स्टोरेज है वहां पे सेव कर सकते हैं। तो डिजिटल इमेज कैन बी स्टोर्ड बट एनालॉग इमेज कांट बी स्टोर्ड। सेकेंड थिंग इज, एनालॉग इमेज में क्या होता है, एनालॉग इमेज हैज फिजिकल एग्जिस्टेंसी, फिजिकल एग्जिस्टेंसी, ठीक है, वेयर एज डिजिटल इमेज में वर्चुअल एग्जिस्टेंसी है, वर्चुअल एग्जिस्टेंसी। एनालॉग इमेज में क्या हो सकता है, एनालॉग इमेज क्या हो सकता है, वी कैन, एल्बम। हाँ, एल्बम, एल्बम इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो वर्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट हैज सम फिजिकल शेप, फिजिकल साइज, इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी मूव्ड, ठीक है, बट उसका वर्चुअल मीन्स उसको हम मूव नहीं, टच नहीं कर सकते, उसका कोई तुम्हारा फिजिकल डायमेंशन नहीं है। वर्चुअल मीन्स जो हम लोग देख रहे हैं थ्रू मोबाइल फोन या थ्रू अ स्क्रीन, कि अगर मैं लैपटॉप में, तुम लोग अभी मेरा ये क्लास को अगर तुम मोबाइल फोन में देख रहे हो तो वहां पे एक वर्चुअल स्क्रीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वही चीज को अगर तुम लैपटॉप में व्यू कर रहे हो तो वहां पे लैपटॉप के स्क्रीन के वाइज उसका व्यू क्रिएट हो रहा है, इमेज क्रिएट हो रहा है, बट फिजिकली हम उसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम फिजिकली यहाँ पे हाथ से लिख नहीं सकते, ठीक है, whereas we can physically write on the blackboard, ठीक है। तो now analog image we can, क्या कहने जा रहा था, हाँ, in case of analog image we can store, if storage we can store it in physical, ठीक है। एनालॉग इमेज को अगर हम स्टोर करेंगे लाइक एल्बम, घर में सभी का एल्बम है, देखोगे फोटो में जो है, जो फोटो स्टोर किया जाता है वो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल, इन ओरिजिनल, जो मेरा फोटो है, जो मेरा आउटपुट है, उसी को डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं अगर स्टोर करने की आवश्यकता हो। डिजिटल इमेज में क्या होता है, डिजिटल इमेज में क्या होता है, वी कांट स्टोर ओरिजिनल वन, rather than we store the sample, सैंपल, लाइक तुम अगर एक फोटो को व्हाट्सएप में स्टोर करते हो, व्हाट्सएप में किसी को देते हो, तो वो ओरिजिनल फोटोग्राफ नहीं होगा। मेन तुम जहां पे कैमरा से फोटो क्लिक किए हो, ठीक है, व्हाट्सएप क्या करेगा, उस चीज का एक रेप्लिका बनाएगा, उस फोटोग्राफ का एक रेप्लिका बनाएगा, फिर उस रेप्लिका को क्या करेगा, व्हाट्सएप अपने ड्राइव में स्टोर करेगा। लाइक सपोज मैं एक एनालॉग फोटो, यहाँ पे मेरा पास एक एनालॉग फोटो है, ठीक है, मैं उसको स्टूडेंट को हैंड ओवर कर दिया हूँ, सीएससी स्टूडेंट को हैंड ओवर कर दिया हूँ। तो एट नाउ इफ व्हेनेवर आई एम गोइंग टू हैंड ओवर इट, नाउ मेरे पास और कोई फोटोग्राफ है नहीं, तो आई कैन ट्रांसमिट और आई कैन ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल वन। बट इन केस ऑफ डिजिटल, सपोज आई हैव टू फॉरवर्ड अ पिक्चर जिसका साइज है 21 MB, लेट इट बी, सो नाउ आई मेक इट doc file and then circulate it to the student. Now since देखोगे मेरे पास भी उस फोटो का एक कॉपी है, तुम लोगों के पास भी एक कॉपी है, फिर तुम लोग अगर किसी को उस फोटो को फॉरवर्ड करोगे तो सबके पास एक एक कॉपी है। सो जो ओरिजिनल है वो कभी मैं सर्कुलेट नहीं कर सकता हूँ, जो ओरिजिनल है वो मेरे मोबाइल में स्टोर रहेगा, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट इट,
or whenever I am going to forward it to the students and the students will forward it to their among their friends, only the photocopy or only the sample image or only the replica will be forwarded. So this is the very basic difference between analog image and digital image. Since analog image has physical existency and it has physical dimension, so we can transmit or transform or forward it original image. But in case of digital, we can't forward or we can't transmit the original one. After giving, whenever we are going to forward or transmit the image, first of all device will make a replica of that image, and then that replica will be transformed to the other devices. Got it? The differences between analog image and digital image. Yes, Yes, sir. Okay, now processing. Now we are going to discuss about image processing. Now processing means whenever we are applying any process to a particular thing, that is known as processing through a system. Okay, so since image processing is there, so we have to process the images. Now how we will process that image? So to know about the image processing, as say like your signal image processing also classified into two categories: analog image processing, as you already gave the example of television, television broadcasting through analog process, and digital image processing, that is through your digital device. Nowadays almost we all are using digital devices, from our mobile to laptop or television set, whatever we are using, that is all our digital image processing. Now in that case, in case of digital image processing, now since we know that analog image has a physical existence and digital image has virtual existence, so we have to give the signal to the digital image processor which is analog in nature. Like suppose outside your house there is a scenario which is analog one. It can be visualized. You can visualize this. ठीक है, इसका physical existence ही है. Suppose there is a tree and a bird is sitting on that tree outside your room. So these both tree and bird has their physical existence, as well as it can be visualized. Okay, and physical dimension, दोनों का ही physical dimension है. So this can be an analog signal or analog object. So if you are going to click a photo through your digital device, okay, then it is known as digital image processing. And after clicking the photo, if you are viewing that image through your digital device, then it is known as digital image processing. So digital image, analog image processing के लिए उतना हमको जरूरत नहीं है. सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एक रील चाहिए, एक कैमरा चाहिए, कैप्चरिंग डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू हम एनालॉग सिनेरियो को कैप्चर करेंगे एंड we will develop the photo physically. But in case of digital image processing, we have to convert the analog scenario into its corresponding digital platform. So like suppose this is a scenario having a tree outside your room, and you have to capture it through camera, and that will be stored in your laptop or desktop or mobile phone. Okay, then it is known as digital image processing. That is, the platform is totally digital, and if you will print out that image, then it will be known as analog image processing. Okay, so now digital image processing का कुछ steps होता है. Steps of digital image
processing. So digital, first one is analog signal, like scenario, voice, visual, ठीक है, जो भी है that is analog signal. Next is इस analog signal को capture करेगा, captured by digital device, and then the digital device will provide that captured picture on the digital screen. So view on digital screen. That is the step of digital image processing. Analog signal which will be captured by a digital device, or this device is basically known as very well known term, that is camera. ठीक है, जो हम सबके पास अभी अवेलेबल है. So whatever, whenever we are going to click the picture of the scenario or of the analog signal, then that if the captured picture is displayed on the screen of the digital device, then that process, image processing, is known as digital image processing. Now whenever we are going to capture the image, okay, you will see after capturing the image, we are viewing that image on the screen of our mobile phone. And all of you know that the mobile phone or the laptop or the projector screen, whatever screen is that, whatever is projected on that screen, whatever is displayed on that screen, will be in this area. ऐसा एक एरिया रहता है, चाहे वो लैपटॉप का हो, मोबाइल का स्क्रीन का हो, वो एरिया रहता है. एंड दैट एरिया is divided into two axes. One is x axis, another is y axis. अगर तुम मोबाइल का स्क्रीन पकड़ लो, सपोज ये मोबाइल का स्क्रीन है, तो यहाँ पे ये x एक्सिस रहेगा और ये y एक्सिस रहेगा. अगर लैपटॉप पकड़ लो तो ये लैपटॉप का x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस. ठीक है, एंड दिस axis is nothing but, the axis is nothing but pixel. Suppose here मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे एक पेड़ का फोटो आ रहा है, तो द पोजिशन ऑफ द tree and the area captured and the area occupied by the tree will be defined by x-axis and y-axis, and this position is known as pixel. So pixel is nothing but unit of digital image. Pixel is unit of डिजिटल इमेज. देखोगे कोई भी इमेज को अगर हम बहुत ज्यादा जूम करेंगे, बहुत ज्यादा एकदम मैक्सिमम रेंज तक जूम करते करते जाएंगे, तो देखोगे वो इमेज इस तरह ब्लॉक सेट में दिखाई देगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. And that particular one block set is known as 1 pixel. 1 pixel. So अगर हम लोग यूज कर रहे हैं 48 मेगापिक्सल, हाँ, तो that means mega means kilo means 1000, mega means मेगा कितना होता है? मेगा कितना होता है? किलो अगर तुम्हारा 10⁻³ है तो मेगा कितना होगा? बोलो. 6 होगा सर. 10⁻6. 10⁻6. 6. 10⁻6. So that means 10 के बाद 6 zeros will be there. ठीक है. तो now whenever we are going to tell that I have 48 megapixel, that means that much pixel will be participated to form an image.
ठीक है, अगर मैं 48 मेगापिक्सल यूज करूं, दैट इज 48 into 10 to the power 6 pixels are there. That means in my mobile screen, if it has 48 megapixel camera, so in that screen 48 into 10 to the power pixels are there. ठीक है, तो if I will increase the number of pixel, obviously my image will be more clear. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जितना ज्यादा पिक्सल होगा मेरा पिक्चर उतना क्लियर होगा, और जितना मेरा ज्यादा पिक्चर पिक्चर क्लियर होगा उतना ही मेरा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे ईच इमेज विल ट्रांसफॉर्म सम इंफॉर्मेशन. अगर मैं तुमको ऑलरेडी पहले क्लास में बता दिया था कि अगर एक बीच का इमेज में दिखाऊं या एक माउंटेन का इमेज में दिखाऊं, तो अगर एक माउंटेन का इमेज बहुत ही धुंधला है, ठीक है, नाइट व्यू, तो नाइट विजन में मेरा क्या है, उतना पिक्सल यूज नहीं होगा, तो बहुत ही धुंधला आएगा, ब्लर्ड आएगा, तो वहां पे मेरा ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ उस पिक्चर के थ्रू. अगर मैं जितना 108 मेगापिक्सल के हेल्प से मैं माउंटेन का फोटो खींचाऊं, तो picture will be more clear, and more clear picture means more information will be gathered inside the picture. So जितना ज्यादा मेरा पिक्सल होगा उतना ज्यादा मेरा information will be carried in the digital image. Now next is how digital image is formed. So next is how digital image is formed. So first of all, I need a camera. That camera must support digital platform. ठीक है. Next is energy should be given by the battery or solar energy. Next is sampling. Whatever image is viewing from the outside of the camera, that must be captured. That means sample will be there. ठीक है. Capture the sample of analog signal. And third one is fourth one is storage. Whatever is captured, that is stored in a memory. So this is how the digital image is formed. So next is I have to give some modification to capturing this digital image और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है जिसके थ्रू मोर इंफॉर्मेशन कैन बी कैप्चर्ड विथ यूज ऑफ लेस पिक्सल, क्योंकि मैं जितना ज्यादा पिक्सल यूज करूंगा साइमल्टेनियसली मेरा स्टोरेज उतना बढ़ेगा. देखोगे अगर मोबाइल में ऑप्शन रहता है, किसी के पास अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो दो ऑप्शन रहता है. एक है इंटर 48 मेगापिक्सल से तुम फोटो खींच सकते हो या नॉर्मल फोटो खींच सकते हो. तो अगर देखोगे वेन एवर यू आर क्लिकिंग द फोटो थ्रू व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, तुम व्हाट्सएप में कैमरा ऑप्शन को चूज करके जो फोटो खींचोगे और नॉर्मल कैमरा 48 मेगापिक्सल में रख के जो फोटो खींचोगे, दोनों का साइज देखोगे मैटर करेगा. इवन योर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में जो इमेज खींचा गया है उसका जो क्वालिटी होगा फार बेटर क्वालिटी होगा तुम्हारा नॉर्मल कैमरा 48 मेगापिक्सल में रख के जो इमेज खींचा गया है. तो मेरा मेन काम है, मेरा स्टोरेज पिक्सल जो है मिनिमम पिक्सल में यूज करूंगा ताकि मेरा मिनिमम मेमोरी यूटिलाइज हो, और मिनिमम मेमोरी यूटिलाइज होने के वजह से होगा, और साइमल्टेनियसली मेरा इंफॉर्मेशन में जो देना चाहता हूं वो इंफॉर्मेशन मैं उसको दे सकूंगा. So in that way I have to store or I have to operate the digital signal or digital image. So इसके लिए मुझे कुछ हेल्प चाहिए डिजिटल डिवाइस के थ्रू, जिसमें सबसे पहला है मेरा कंप्यूटर ग्राफिक्स.
तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करता है, दैट इज तुम सपोज कोई भी एक इमेज को कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, तो सन रे सपोज एक पेड़ में पेड़ का फोटो क्लिक करोगे, तो देखोगे जब तुम इमेज क्लिक कर रहे हो, जब डिस्प्ले इमेज डिस्प्ले होगा, देखोगे कि जो फोटो है उसमें कलर का थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाई देगा, ठीक है, ग्रीनिश कहीं पे होगा, कहीं पे कम ग्रीनिश होगा। तो ये जो फॉर्मेशन है, रिफॉर्मेशन है, ये जो करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कुछ कुछ कैमरा पे देखोगे, तुम्हारा कैमरा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर धूप में तुम उसको ऑपरेट करोगे या कोई ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट को तुम उससे कैप्चर करोगे, तो देखोगे उतना अच्छा आता नहीं है। और वहीं पे देखोगे नॉर्मल एक कैमरा यूज करोगे और ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट को अगर तुम कैप्चर करोगे, देखोगे पिक्चर ठीक ठाक आता है। तो दैट डिफरेंस मेक्स बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करता है, तुम जो इमेज को खींचोगे उसका तो एक कलर कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्बिनेशन को वो डिटेक्ट करेगा, वो डिटेक्ट करके उसी के आस पड़ोस कहीं पे तुम्हारा सनलाइट ठीक से पड़ता नहीं है, ठीक है, अगर तुम एक पेड़ का फोटो उठाने जाओगे, देखोगे बहुत सारा जगह पे सनलाइट पड़ नहीं रहा है, तो हो सकता है कि कैमरा जो है, डिवाइस जो है, वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। सो इफ द कैमरा विल नॉट एबल टू कैप्चर दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है, कंप्यूटर उसको जनरेट करता है कि उसके आस पड़ोस का इमेज कौन सा है, तो उस इमेज को डिटेक्ट करता है, एंड उस इमेज के नियर अबाउट जो कलर है, उस कलर उसमें डालता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसी में देखोगे तुम लोग व्हाट्सएप यूज करो, देखोगे अगर कोई ग्रुप ग्रुप पिक्चर के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा ग्रुप का जो साइड का जो डिस्प्ले है, बैकग्राउंड है, चेंज होते रहता है। हुआ है कि नहीं, व्हाट्सएप में कोई ना कोई किसी ना किसी ग्रुप पे तो ऐड हो, Yes, sir. ठीक है। तो देखोगे सर आपका कभी क्वेश्चन समझ नहीं सपोज यू आर गोइंग टू कैप्चर अ इमेज ऑफ अ ट्री, ठीक है, जो सूरज के रोशनी पे है, ठीक है, दिन के उजाले में एक पेड़ का फोटो उठाओगे, तो तुम्हारे पास एक डिजिटल कैमरा है, लाइक मैं बोल रहा हूँ 108 मेगापिक्सल, वेरी हाई रेजोल्यूशन कैमरा तुम्हारे पास है, उससे फोटो उठाओ। तो देखोगे अगर हम लोग खाली नजर से देखें, ठीक है, तो देखेंगे सूरज का रोशनी पेड़ के हर एक जगह पे सेम अमाउंट में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है खाली नजर में मैं पेड़ का कुछ पोर्शन देख ना पाऊं, तो मैं कैप्चर कर रहा हूं उस इमेज को, और अगर जो डिवाइस है मेरा कैमरा जो है, मैं कैमरा कैप्चर कर रहा है, बट उस पोर्शन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मींस डिटेक्ट नहीं कर पाना, दैट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मेरा क्लास चल रहा है और तुम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्लास कौन से प्लेटफॉर्म में ले रहा हूं, और ड्यू टू व्हिच यू मिस्ड माय क्लास, दैट मींस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिवाइस क्या करता है कि इंफॉर्मेशन मेरा लॉस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आसपास का एनवायरमेंट, मतलब सपोज यहाँ पे एक डाली का फोटो, ठीक है, यहाँ पे पत्ता है, ठीक है, डोंट कॉन्सेंट्रेट अबाउट द ड्रॉइंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉजिक, जस्ट अ मिनट। तो अगर इस डाली में मैं फोटो खींच रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे सूरज का रोशनी हर एक जगह पे सेम नहीं पड़ रहा है, और लेट इट भी यहाँ पे एक पत्ता है जिसपे सूरज का जो रोशनी है वो ठीक ठाक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पड़ रहा है, ड्यू टू विच इन माय नेकेड आई एम नॉट गोइंग टू एबल टू सी द लीफ, बट व्हेनेवर आई विल कैप्चर इट थ्रू माय मोबाइल कैमरा, ठीक है, देन व्हाट एवर द इमेज विल बी कैप्चर्ड, यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये डाली का फोटो उठेगा, और इस पोर्शन में देखोगे हल्का डार्क ग्रीनिश आएगा, ठीक है, हालांकि मोबाइल के फोन कैमरा कैप्चर कर रहा है, मेरे नेकेड आई पे हम देख नहीं पा रहे, बट कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो कैमरा इसको कैसे कैप्चर कर रहा है, क्योंकि सूरज का रोशनी यहाँ पे ठीक ठाक नहीं पड़ रहा है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करेगा, देखेगा इसका सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इट इज ग्रीनिश इन कलर एंड इट्स शेप इज लाइक अ लीफ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक लीफ का शेप को डिटेक्ट करके उसके अराउंड ग्रीन ग्रीन कलर जो इस कलर के साथ
थोड़ा बहुत मैच कर रहा है उसमें उसको कन्वर्ट करेगा. सो दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स. तुम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑलरेडी तुम लोगों का सिलेबस में है. देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब क्या है. द ग्राफिक्स वी हैव डिजाइंड बाय द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइंग कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक पेन ड्राइंग कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ द कलर ऑफ दिस नीब, color of this body, color of this holder will be designed by the computer graphics. That is, it will graphically represented. That is, graphics means colored version. इसको coloring करके इसको represent करेगा, which is look alike the original thing. So image में भी ऐसा होता है. image processing में मेरा computer graphics हम लोग use कर सकते हैं. ठीक है, जैसे देखोगे अभी बहुत सारा मूवी आता है जो वीएफएक्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड वीएफएक्स इज द मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. पहाड़ नहीं है, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है. ठीक है, तो मैं वहां पे एक पहाड़ डिजाइन कर रहा हूँ, पहाड़ के फोटो वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ. दैट इज ग्राफिक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज, इसके साथ ही ये जो डिटेक्शन प्रोसेस है कि मेरा यहाँ पत्ता लाइक का शेप होगा, ये कौन डिटेक्ट करता है? ये करता है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके बारे में भी तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग का सिलेबस में है. एंड यू नो बेटर देन मी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा. वो डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप का मेरा फोटो चाहिए. अगर मैं फिल्टर यूज करूं तो ऑब्वियसली इमेज विल बी कैप्चर्ड एज पर द फिल्टर यूज्ड. हाँ, और फिल्टर का यूज आई थिंक मुझसे बेटर तुम लोग ज्यादा जानते हो कि फिल्टर जब हम लोग यूज करते हैं, जहां पे फोकस कम रहना चाहिए वहां पे फोकस कम रहता है. देखोगे कुछ कुछ कैमरा में, सेल्फी कैमरा में क्या होता है, तुम जहां पे तुम्हारा फेस है वो फेस को डिटेक्ट करता है. ये सुनो, यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि नहीं कि फेस डिटेक्ट करता है. यस सर. ठीक है, तो ये फेस डिटेक्ट कौन करवाता है? कोई तो तुम वहां पे प्रोग्राम नहीं देते हो यहाँ पे, या वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई काम नहीं है. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट इज एल्गोरिदम ऑफ द working principle of the camera will be coded in such a way that whenever the camera will see some faces around its capturing zone, it will be detected by the camera. So ये artificial intelligence का काम है. तो देखोगे जब तुम्हारा फेस डिटेक्शन ऑन रहता है कैमरा में, तो देखोगे जब तुम कैमरा क्लिक करते हो, देखोगे जो इमेज है, जो फेस है, थोड़ा ग्लो करके खींचा जाता है पिक्चर. ठीक है, सेल्फी कैमरा में भी ऐसा होता है कि मेरा जो ओरिजिनल फेस है वो उससे थोड़ा फिल्टरिंग करके फेस को थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करके थोड़ा ग्लो करके प्रोड्यूस करता है इमेज. दैट इज टोटली डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इमेज प्रोसेसिंग में मुझे ये दोनों चीज का हेल्प लगेगा. एंड इन नेक्स्ट क्लासेस और फ्यूचर क्लासेस, व्हेनेवर वी विल सी द image restoration, histogram and image modification, then we will see how computer graphics and AI will help the image processing. Now for this session, that is the last topic of today's session, we will see about the capturing device. ठीक है, क्योंकि मेरा कैप्चरिंग डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज बिफोर एंटरिंग द टॉपिक मेरा हो जाना चाहिए. जस्ट मिनट. तो यहाँ पे मेरा कैप्चरिंग डिवाइस क्या है? यहाँ पे मेरा कैप्चरिंग डिवाइस क्या है? हम लोग जो इमेज खींचते हैं, जो सेल्फी उठाते हैं, कैमरा. कैमरा. तो can you define camera? I think this is very silly question, but I need some answer so that I can know about the knowledge of camera from your end. Can you define camera, or can you explain what do you mean by camera as per your knowledge? मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट टेक्निकल ये नहीं. तुम लोग जो कैमरा के बारे में सोचते हो, वो कैमरा क्या है? सर एक डिवाइस है जो फोटोग्राफ लेने में मदद करता है. नेक्स्ट,
सो ये डिवाइस है जो कैप्चर करता है, ठीक है, बट ये स्टोर नहीं करता। कैमरा इज नॉट स्टोरिंग द इमेज। कैमरा का काम क्या है? एक रेप्लिका बनाना। सपोज यहाँ पे मैं एक पेड़ देख रहा हूँ, डोंट गो फॉर द इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कैमरा पुट कर रहा हूँ और कैमरा के यहाँ पे एक प्रोजेक्टर की तरह चीज रहता है, दैट मीन्स फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज इस लेंस के थ्रू यहाँ पे प्रोजेक्टेड होता है, और अगर मैं इस प्रोजेक्टर को देखूंगा तो देखूंगा यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज रेप्लिका क्रिएट होता है, एंड स्टोरिंग डिवाइस विल कैप्चर दिस रेप्लिका, ठीक है। तो ये है मेरा कैमरे का मेन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो नाउ मैं ये कैमरा जो है वो आया कहां से? एनी आइडिया? क्योंकि कोई भी एक डिवाइस, मेरा मोबाइल फोन हम लोग यूज करें, मोबाइल फोन को तो कभी ना कभी पहली बार लॉन्च होना पड़ा था, तब जाके हम लोग आज अवेलेबल हो रहा है मार्केट में। तो कैमरा भी कभी ना कभी पहली बार लॉन्च हुआ था। तो इन दैट केस हम लोग देखोगे अपने साइंस प्रोजेक्ट में 7, 8, 9, 10 यहाँ पे हम लोग कभी ना कभी एक कैमरा रिलेटेड एक प्रोजेक्ट किए, जो द वेरी फर्स्ट कैमरा को डिफाइन करता है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट और नेम ऑफ दैट टॉपिक where the very first concept of the camera was explained? हम लोग किए हुए हैं, साइंस से, साइंस बैकग्राउंड से हैं हम लोग, तो हम लोग अपने स्कूल लाइफ में ये प्रोजेक्ट के बारे में सुने थे या ये टॉपिक के बारे में पढ़े थे। और मैं अगर लिखूंगा सबको तुरंत विद इन अ सेकेंड सबके माइंड में क्लिक करेगा। कह सकते हो? कह सकते हो? देखो मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है, और अगर किसी को याद आया दे कैन रेज हिज और हर वॉइस कि हाँ सर मैंने नाम सुना है। नाम सुने हो? Yes, sir. कहाँ पे? Yes, sir. कहाँ पे? कहाँ पे सुने थे? फिजिक्स में है क्या नहीं? Yes, sir. तो वहां पे पिनहोल कैमरा का प्रिंसिपल क्या था? देखोगे समहाउ लाइक दिस। तो वहां पे क्या था, हम लोग क्या करते थे, एक बॉक्स लेते थे, बॉक्स के चारों तरफ ब्लैक कलर फेस करते थे, बॉक्स का एक पोर्शन में हम लोग एक पिन से होल कर देते थे, दैट इज उसका होल का डायमेंशन एक पिन की तरह होगा। एंड व्हेनेवर वी आर पुटिंग दिस बॉक्स ऑन अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करता था, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड ये इमेज क्रिएट करता था बॉक्स के ऑपोजिट एंड के दीवार पे। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरा। कैमरा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। नाउ उसको कैप्चर करके जिस पोर्शन पे वो पढ़ रहा था, उसका इमेज पढ़ रहा था, उसको स्टोर करना है मेरा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इसको स्टोर करना ही है मेरा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो दैट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी हैड। नाउ पिनहोल कैमरा का तुम लोग का असाइनमेंट क्या रहेगा? फर्स्ट असाइनमेंट, पिनहोल कैमरा, कैमरा इसके बारे में विद इन और 100 वर्ड्स
लिखना। मोर देन 100 वर्ड भी हो सकता है, बट मिनिमम 100 वर्ड्स इसके बारे में लिखना। हो पाएगा? Yes, sir. So now this pinhole camera was first explained in 1000 before Christ, in the year of 1000 before Christ. So in these cases, instead of simple device, a room was used, a dark room was used. पूरा रूम डार्क रहता था और उसके ऑपोजिट जो स्क्रीन था वहां से क्या होता था, इमेज आता था, एंड एग्जैक्ट रेप्लिका विल बी प्रोजेक्टेड ऑन दैट स्क्रीन। सो यहां से मेरा जो पहला कैमरा का कॉन्सेप्ट वो आया था। उसके बाद 1685 में मेरा पहला जो पोर्टेबल कैमरा, देखोगे बहुत सारे मूवी में जहां पे तुम्हारा पुराना टाइम दिखाया जाता था, ठीक है, वहां पे देखोगे क्या करता था, एक आदमी हाथ पे लाइट रखता था, छतरी के अंदर एक बड़ा सा डिवाइस रहता था जिसको पर्दे में पूरा कवर किया जाता था, लाइक ब्लैक, फुल ब्लैक, के वहां कहीं से भी लाइट ना आए। तो वहां एक आदमी अपना मुंह रखता था और फोटो खींचता था, और उस फ्लैश के साथ क्या होता था, वो फोटो कैप्चर्ड होता था। देखोगे नहीं मूवीज में? Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, था sir. पहला पोर्टेबल कैमरा। उसको पोर्टेबल क्यों कहते थे? क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे। तो ये पोर्टेबल कैमरा का फर्स्ट इन्वेंशन, पोर्टेबल कैमरा हुआ था 1685 में, ठीक है। नेक्स्ट, वहां से बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, दा विंची, ठीक है, पूरा नाम है लियोनार्डो दी सर पियरो दा विंची, ठीक है। ये क्या किए थे, ये पहले इस पोर्टेबल कैमरा का जो डिजाइन ये ड्रॉ किए थे, एंड बाय ऑन द बेसिस ऑन दैट डिजाइन इवन टुडेस मॉडर्न कैमरा इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। सो उसके बाद क्या आया, फिल्म, जो स्टोरेज होता है फिल्म, दैट इज रेप्लिका, दैट इज इन्वर्टेड पोर्शन रहता है फिल्म। और देन आफ्टर दैट हम लोग अभी जो आया है डिजिटल कैमरा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवाइसेस। सो योर नेक्स्ट असाइनमेंट इज पिनहोल कैमरा। You have to write minimum 100 words about pinhole camera, and then in next day we will discuss about the uses, application of image, as well as the dimensions related to the image. Okay, so today up to this, have you any doubts regarding today's session? Yes, sir. बोलो, डाउट है तो बोलो। सर डिजिटल इमेज में आप बताएं, ओरिजिनल हम लोग शेयर नहीं करते हैं, उसका कॉपी शेयर करते हैं। ओरिजिनल रहता कहाँ पे है? ओरिजिनल तुम्हारे स्टोरेज में। सपोज तुम मोबाइल से फोटो एक खींच रहे सर हो, तो मेरे स्टोरेज पे जो है और जिसको शेयर किया तो वो भी तो सर बोल सकते हैं ना, वो भी तो ओरिजिनल पीस ही है जब हम शेयर कर रहे हैं रेप्लिका तो। रेप्लिका 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 वो ओरिजिनल नहीं, वो रेप्लिका है। नहीं, रेप्लिका। देखो तुम एक मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, ठीक है, हाँ, फोटो खींच रहे हो, उसको तुम मुझे फॉरवर्ड करो, तो व्हेनेवर यू आर फॉरवर्डिंग मी, तो ओरिजिनल अगर होता, तो अगर मेरे पास ओरिजिनल कॉपी आ जाता, तो मेरे पास आने के बाद तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, ओके सर। है कि नहीं, यस सर। कॉन्सेप्चुअली। बट हम्म। देखो तुम अगर मुझे कुछ इमेज फॉरवर्ड करोगे और सडनली यू आर ओपनिंग योर व्हाट्सएप और मेल, अगर मुझे मेल में फॉरवर्ड किया, तो देखोगे तुम्हारे मेल में भी एक कॉपी रहेगी, ठीक है। तो ये होता है मेरा कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, दैट इज रेप्लिका, ठीक है। तो डिजिटल में रेप्लिका फॉरवर्ड होता है, ओरिजिनल विल नेवर बी फॉरवर्डेड। और ये हम लोग पढ़े थे तुम्हारा डिजिटल सिग्नल में सैम्पलिंग के टाइम। सैम्पलिंग पढ़े हो ना? अच्छा, नहीं पढ़ा। सैम्पलिंग तुम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था? अच्छा था, पढ़े नहीं थे।
तो सैम्पलिंग देखो, अगर तुम किराने के दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, और तुमको चावल खरीदना है, तो तुम लोग क्या करते हो? किराना क्या तुमको ओरिजिनल जो बोरा है वो पूरा बोरा तुमको दे देता है, तुम एक एक दाने को चूज करते हो चावल का प्रॉपर्टीज लेने के लिए? नो सर, क्या करते हो? क्वांटिटी बताते हैं, वो उसको उतना निकाल के दे देता है। क्वांटिटी बताने से पहले वो तुमको थोड़ा सैंपल देता है, ठीक है? वो सैंपल है तुम्हारा, सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट, कि वो जो सैंपल दे रहा है उसके अंदर तुम्हारा पूरा बोरी का प्रॉपर्टीज उसमें कैरी करता है। वो सैंपल में जैसा चावल बनेगा, तुम बोरी में जितना चावल है उसमें वही उसी टाइप का चावल तुम्हें बनेगा। तो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट जो है कि सैंपलिंग होता है from a large quantity, a small quantity is selected, and in that small quantity all the properties of the large quantity will be there. तो इमेज में भी ऐसा ही होता है। मैं जब तो एक फोटो क्लिक करता हूँ और तुम्हें सेंड करता हूँ, तो तुम्हारा जो सेंड फोटो है वो मेरा ओरिजिनल फोटो का कॉपी है, एंड इन दैट कॉपी ऑल द इंफॉर्मेशन of the original one will be there. If not, then I can't say that is the replica of the original one. Got it? यस सर, Okay. So any other थैंक यू doubt? सर। Any other doubt? नो सर, नो सर। Okay. So I'm going to stop the recording as well as I'm going